So, good morning to all of you. Today we have to study the topic angular projection. Earlier we have studied about horizontal projection. Today we are going to study about angular projection. In angular projection, we will throw an object with some initial velocity making some angle with horizontal direction. In horizontal projection, we throw object in horizontal direction and it moves under the influence of gravity. But in angular projection, we throw an object with some initial velocity but not in horizontal direction but at an angle with horizontal direction. Okay, so suppose you have thrown an object with some initial velocity u making an angle theta with horizontal direction, just like throw of a ball. Okay, so we will resolve this u into rectangular components. This is x component, and already you know that x component is always a cos theta. A means u cos theta. Similarly, y component is always equal to a sin theta. So here a is u, so y component uy is u sin theta. Now what will happen? The object is not propelled by any fuel or engine, so it will, because you have provided some energy also. When velocity is there, obviously you have provided kinetic energy, so it will move in the open space, but gravity will work, so it will bend and it move along a curved path after reaching a highest point. Now because of the effect of gravity is acting in vertically downward direction, it will again reach the ground. The velocity at point of projection and velocity at point where it touches the ground again, it will be same. अगर u velocity से throw किया है तो b point पर भी velocity u होगी. Okay. Now meanwhile, when it is during flight, at any instant, point is p. The position coordinates of p, they are x and y. Now velocity is always along the tangent to the curve. So at this point, velocity is v and it is along tangent to the curve. You can see that direction is continuously changing. So suppose this velocity makes an angle beta with horizontal direction. Horizontal component of velocity is vx and vertical component of velocity is vy. At A is the point where this object reaches the highest vertical distance. This is the maximum height. O to B is known as range. Okay. So let an object is projected with initial velocity u, making an angle theta with horizontal direction. Object moves under the influence of gravity and moves along path OAB and reaches to ground at point B. या वापस B point पर ground पर पहुंच जाएगा. Okay. Now here we will take two assumptions. यहाँ पर दो assumptions क्या है? Acceleration along x axis is 0. ये आपको पता होना चाहिए कि x axis के along acceleration 0 है, because object is moving under influence of gravity only. There is no fuel, there is no engine who will compel the projectile. इस object को थ्रो करने के बाद में कोई भी फ्यूल, कोई भी इंजन नहीं है जो इसको कोई एक्सेलरेट करे. ओनली ग्रेविटी विल वर्क, और ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होगा. और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट. एक्सेलरेशन 0 मींस वेलोसिटी कांस्टेंट. किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग. सेकंड, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज ए वाई एंड इट इज माइनस जी. अब आप देखें यहाँ पर हमने माइनस जी क्यों लिया है. हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हैज बीन टेकन एज पॉजिटिव. दिस इज वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने प्लस माना है. इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन हैज बीन टेकन एज पॉजिटिव. ग्रेविटी वर्क्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर ए वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस जी होगी, बिकॉज ग्रेविटी वर्क्स ऑपोजिट टू वाई एक्सिस. Okay, so acceleration along y axis is minus g.
नाउ अब आप रिजॉल्व करेंगे u को इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग 0 है। व्हाट अबाउट uy? uy is u sin theta and it changes under the effect of gravity. ग्रेविटी डाउनवर्ड वर्क करेगी तो ऑब्वियसली u sin थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ओके, सॉरी, एक्सेलरेशन होगा, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेट होने के कारण से जो वेलोसिटी है इट विल चेंज। नाउ वेलोसिटी पर इफेक्ट क्या पड़ता है? तो आपको ये पता है कि जब वो O से लेके A तक जा रहा है इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अगेंस्ट ग्रेविटी जब मूव करते हैं तो रिटार्डेशन होता है, मींस वेलोसिटी डिक्रीज होती है। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम O टू A आवर वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर ये मोमेंटरीली रेस्ट में होगा, अगेन ग्रेविटी वर्क करेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर मोमेंटरीली रेस्ट का मतलब कौन सी वेलोसिटी से है वो हम बाद में बात करेंगे। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हम बात कर रहे हैं मोमेंटरी रेस्ट की वर्टिकल कंपोनेंट पर। ए पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। आप जैसे यहाँ देखते हैं u है, u का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा। यहाँ पर v का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? vy। लेकिन a पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि a पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा। सो वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, O से लेके A तक वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड बिकम्स 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। ये हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द x कंपोनेंट। x कंपोनेंट प्योरली कांस्टेंट है, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज होता है, A पॉइंट पर 0 हो जाता है और अगेन इंक्रीज होना शुरू करता है एज इट मूव्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ एंड हिट्स द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड तक आते आते फिर वही y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो। तो ये जितना भी वेरिएशन है हम जो स्टडी कर रहे हैं दिस इज अबाउट y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट के अंडर ही लिखा गया है। ओके, नाउ अब हम बताते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जिस पाथ पर मूव करता है वो पाथ कैसा होता है। तो इसके लिए हम x एक्सिस का मोशन और y एक्सिस का जो मोशन है उसको अलग अलग स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टडी मोशन अलोंग x एक्सिस। ओके, let after time t object is at position p x, y। ऑब्जेक्ट जो है वो p पॉइंट पर जो पोजीशन है दैट इज आफ्टर टाइम t। तो जरा न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगा दें, s is equal to ut plus half at square and all the parameter has been measured along x axis, distance along x axis, initial velocity along x axis and acceleration along x axis। the values of all parameters are distance along x-axis is x, you can see, initial velocity along x-axis is u cos theta and acceleration along x-axis is 0। substitute all this value, x is equal to ux u cos theta, t as it is, acceleration is 0 so second term is 0। so x is equal to u cos theta into t, तो इससे आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, t is equal to x upon u cos theta। this is equation number 1। now in the same time you have to study motion along y axis। again use second equation, s is equal to ut plus half at square, this is the motion along y axis। sy it is y, uy u sin theta and ay minus g। ये डिस्टेंस भी देखें अपवर्ड डायरेक्शन में है, u sin थीटा भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज व्हाई इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव। नाउ वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू यू वाई की जगह u sin थीटा, t की जगह t, 1/2 ay की जगह माइनस g एंड t स्क्वायर।
Now substitute the value of t as x upon u cos theta, x upon u cos theta. So y is equal to u sin theta is as it is, t x upon u cos theta minus 1 upon 2 g t square x upon u cos theta its whole square. So u to u cancel, sin theta upon cos theta is tan theta, 1 upon 2 g x square, u cos theta its whole square, u square cos square theta. So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta. This is equation number 2. Now you can see there are two variables x and y. The highest power of y is 1, but highest power of x is 2. So y is a quadratic function of x. जब एक पैरामीटर पर एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर अगर 2 हो, तो ऐसा जो फंक्शन है वो आपको एक पैराबोलिक शेप देता है. दिस शेप, आप ये जो कर्व्ड शेप देख रहे हैं, दिस शेप इज नोन एज पैराबोलिक शेप. ओके, सो y is a quadratic function of x, hence trajectory of a projectile is parabolic. ये जो पाथ फॉलो करता है उसकी जो शेप होती है वो पैराबोलिक शेप होती है. नहीं, किसी का माइक अगर चालू है तो वो बंद कर दें. चेक कर लो अपना माइक. नाउ नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? जिस पोजीशन O से आपने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया है, वापस ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है. सो टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. आप इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, इट रिमेन इन द स्पेस फॉर सम टाइम एंड इट रीच द ग्राउंड एट पॉइंट बी. तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कितना टाइम लगा? दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. So time taken by projectile to reach the ground from point of projection, it is represented by capital T. अब इस पूरे मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना और हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में आना. ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना, यहाँ जो टाइम इंटरवल है ये कहलाता है टाइम ऑफ असेंट, और हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड पर आना ये कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट. जितना टाइम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगेगा. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट t एंड टाइम ऑफ डिसेंट t. सो वी कैन से टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 टाइम्स t. आप कोई सा भी टाइम कैलकुलेट कर लें, चाहे टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट कर लें, चाहे टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट कर लें, और इसका जस्ट डबल कर दें तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है. नाउ व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट. जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट जहां से हमने थ्रो किया है वहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा. टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम ऑफ डिसेंट है. और दोनों में क्या रिलेशन होता है? टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ओके, नाउ अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, वेलोसिटी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यू कैन सी, अगर ये कर्व्ड पाथ लेते हैं और ये अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो इस पॉइंट पर आप देखें टेंजेंट ड्रॉ करें, देन वेलोसिटी विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसका मतलब ये हुआ दैट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0. और यही हमने एजम्पशन में लिखा था कि जो y कंपोनेंट है वो पहले डिक्रीज होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाता है.
सो वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट a इज 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वो भी y डायरेक्शन में। vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। vy कहां पर, a पॉइंट पर, 0 है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल तो u साइन थीटा है, ay माइनस जी, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा उसको हमने t लिख दिया। तो माइनस जी टी था, इधर ले आए, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, u साइन थीटा ओवर t। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट। यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हो गया। तो बताते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया इसका जस्ट डबल, u साइन थीटा ओवर g, इसका जस्ट डबल कर दें, 2u साइन थीटा ओवर g, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट, और सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन इक्वेशन दूसरी लग जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, अगेन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट a। नाउ अप्लाई थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऑल पैरामीटर्स आर अलोंग y एक्सिस, vy स्क्वायर, uy स्क्वायर प्लस 2ay एंड sy। तो इस समय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन, ये मैक्सिमम हाइट है, तो sy इज h मैक्सिमम, ay इज माइनस जी, uy इज u साइन थीटा एंड vy इज 0। ओके, आप चाहें तो इसमें आप सेकेंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन वहां पर जो टाइम की वैल्यू होगी वो u साइन थीटा ओवर g के इक्वल होगी। आप इसको सेकेंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। vy इज 0, uy u साइन थीटा इट्स होल स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम, 2gh को इधर ले आए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, आप चाहें तो डिस्टेंस को सेकेंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थर्ड आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। O to B, this horizontal distance is horizontal range. So distance covered by projectile in horizontal direction during time of flight। t टाइम में horizontal direction में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये horizontal range है। ओके, सो horizontal range के लिए हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और वो भी x एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस हमें कहाँ फाइंड करनी है, x एक्सिस के अलोंग। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखें, एस एक्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ये रेंज के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये u cos थीटा है। ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, और ये जो डिस्टेंस है कितने टाइम में है, टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, और ये कितना है 2u साइन थीटा ओवर g। अब ये वैल्यूज आप पुट करें, एस एक्स की जगह r पुट किया, यू एक्स की जगह u साइन थीटा पुट किया, t की जगह 2u साइन थीटा ओवर g पुट किया, बट सेकेंड टर्म तो आपको पता है दैट ए एक्स इज 0, सो सेकेंड टर्म विल रिड्यूस टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, u इंटू यू स्क्वायर, ये 2 कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। ओके, मतलब थीटा का डबल कर दें फिर उसका साइन रेशो लें, साइन ऑफ
2 theta. So r is equal to u square sin 2 theta over g. This is expression for range. Now, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो हमारी चॉइस क्या होती है? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम दूरी तक जाए। जैसे आपने देखा होगा, हम जब किसी शेल को फायर करते हैं, तोप से गोले को छोड़ते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि वो दूर टारगेट तक हिट करे। बुलेट से जब फायर करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक हिट कर सके। ओके, मिसाइल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है। मिसाइल्स फ्यूल से कंपेल होती हैं, रॉकेट फ्यूल से कंपेल होता है, ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल नहीं है। बुलेट प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है, बॉल का थ्रो ये प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है, शेल फायर्ड जो हम बॉम्ब जो छोड़ते हैं, गोले का जो छोड़ते हैं तोप से, वो भी प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। ओके, तो हमारी चॉइस ये होती है कि वो जब ट्रैवल करे तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो जाए, मैक्सिमम दूरी तक वो जाए, उसकी रेंज जो है वो बहुत होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अब हमारी कैपेसिटी तो फिक्स है, तो हम क्या करें कि हमारी रेंज जो है वो फिक्स हो जाए। जैसे आपको बॉल को थ्रो करना है तो आपको क्या टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक एक बॉल को थ्रो कर सकें। ओके, सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ रेंज का फॉर्मूला क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब आप अपनी कैपेसिटी से पूरी जितनी वेलोसिटी दे सकते हैं उतनी ही देंगे, तो u में इंक्रीज नहीं हो सकता। g ग्रेविटी है, ऑब्वियसली इट इज ए कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली एक पैरामीटर जो बचता है वो है साइन 2 थीटा। तो हमें ये पता है कि अगर आप रेंज को मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज 1। आपको मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। हाँ, -1 भी होती है, बट माइनस को हम अदर डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मानते हैं। ओके, सो यहाँ रेंज वैसे भी माइनस नहीं हो सकती, तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। अब ये साइन 2 थीटा 1 कब होगा? व्हेन इट इज साइन 90 डिग्री। कंपेयर करें, साइन से साइन कैंसिल, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर आप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उस समय ऑब्जेक्ट की रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री देन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। ओके, और उस समय मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? साइन 2 थीटा 1 हो गया, तो बाकी क्या बचा? आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि थीटा 45 डिग्री होता है, 45 का डबल कर दो 90 डिग्री, और साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगी। अब आप जितनी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी रेंज होगी। ओके, ये प्रोजेक्टाइल का लास्ट टॉपिक है। हालांकि एक टॉपिक और है, लेकिन अभी हम इसी टॉपिक को स्टडी करते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी है। ओके, तो हमने यहां से थ्रो किया, ये कंटिन्यूसली वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन वाइज भी, मैग्नीट्यूड वाइज भी। एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, बट वाई कंपोनेंट चेंज होता है। सपोज एट एनी मोमेंट इट मेक्स एन एंगल अल्फा। v के दो कंपोनेंट किए मैंने, vx एंड dy। अल्फा लिखो, बीटा लिखो, इज द सेम थिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अल्फा, सॉरी थीटा। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन है, अदरवाइज तो यहाँ वैल्यूज होती हैं। सो लेट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज v। टाइम कितना है? t, पोजिशन कोऑर्डिनेट है x और y। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर vx एंड vy। v को मैंने रिजोल्व किया, x कंपोनेंट vx है, y कंपोनेंट vy है। तो हमें ऑलरेडी पता है vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux u cos थीटा था और ax क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है। ये वैल्यू पुट कर दो, तो ux की जगह मैंने u cos थीटा पुट किया, तो vx इज इक्वल टू हो गया u cos थीटा। वो भी देख लीजिए आप,
पहले भी u cos थीटा था, आफ्टर टाइम t भी x कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा ही है, तो x कंपोनेंट चेंज नहीं होता। व्हाट अबाउट y कंपोनेंट, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। ओके, तो uy की जगह u साइन थीटा, ay की जगह माइनस जी एंड t की जगह t। तो vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा vy में चेंज आएगा। ओके, सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो तो वहाँ रिजल्टेंट हम निकालते हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से। a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। vx की जगह आपने u cos थीटा इसका होल स्क्वायर लिखा, vy की जगह u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर लिखा। नाउ u cos थीटा का होल स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बट a माइनस b इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो gt का होल स्क्वायर करो, g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab, ये u के साथ साइन थीटा है, तो 2u gt साइन थीटा। अब इन दो क्वांटिटीज में हम क्या करें, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन टेक u स्क्वायर कॉमन, और जब आप u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सो योर रिजल्ट विल रिड्यूस टू फॉर्म v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, नाउ वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। vy की वैल्यू u साइन थीटा माइनस gt है और x कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा है, तो tan इनवर्स लेकर के हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली तो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर ये tan अल्फा है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको tan में चेंज कर दें और फिर कंपेयर करें, जो हमने यहाँ यूज किया था। जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की वैल्यू लिखें इन टर्म्स ऑफ साइन, कि 1 होता है साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड हियर ऑल्सो, कि अगर tan अल्फा इज इक्वल टू ये वैल्यू है तो इस वैल्यू को tan की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, दोनों साइड से tan कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। tan की हमारे पास में टेबल भी होती है, तो उस tan की टेबल से भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सेम रेंज तक थ्रो करने के क्या दो मेथड हो सकते हैं। जैसे मुझे r डिस्टेंस तक थ्रो करना है, मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सेम रेंज, किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज तक थ्रो करने के क्या दो मेथड हो सकते हैं, क्या टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल हैं। अब ये देखते हैं कैसे। लेट, मतलब हमने एक तो ऐसे थ्रो किया और एक ऐसे थ्रो किया और दोनों केस में रेंज सेम हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है। तो लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। पहले ऑब्जेक्ट को मैंने थीटा से थ्रो किया था, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है 90 माइनस थीटा एंगल पर, और मैं चेक करता हूं कि रेंज कितनी आती है। इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 माइनस थीटा, तो उस समय रेंज कितनी आती है, r डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, अब थीटा की जगह, एंगल की जगह आप कितना लिख देंगे, 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180, 2 इंटू थीटा 2 थीटा। अब मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर आप 90 माइनस थीटा एंगल को भी से भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उस समय रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और अगर थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं तो रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। आप देख सकते हैं कि दोनों रेंज क्या हैं, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं थीटा एंगल से थ्रो करता हूँ तो भी रेंज इतनी होगी, और अगर मैं 90 माइनस थीटा से थ्रो करता हूँ
तो भी रेंज उतनी होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू सपोज 15 डिग्री है, मैं 15 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करूं, चाहे मैं 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री पर थ्रो करूं, दोनों केस में रेंज सेम आएगी। अगर थीटा 30 डिग्री है तो मैं 30 डिग्री से थ्रो करूं और 90 माइनस 30 मतलब मैं 60 डिग्री एंगल से थ्रो करूं तो भी सेम है। अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, जब मैं 90 माइनस थीटा से थ्रो करता हूं तो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के साथ थीटा होता है। मतलब चाहे मैं एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाऊं, चाहे मैं वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाऊं, दोनों ही सिचुएशन में रेंज क्या होगी, सेम होगी। भाई थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुए, तो फर्स्ट एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो जब एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, एट द सेम टाइम एंगल सबटेंडेड विद वाई एक्सिस क्या होगा, थीटा होगा। तो मतलब फर्स्ट केस में थीटा एक्स एक्सिस के साथ है और दूसरे केस में थीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाओ या 90 माइनस थीटा एंगल बनाओ, सेम वेलोसिटी के लिए रेंज भी क्या होगी, सेम होगी। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम इफ थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल और विद वर्टिकल। मतलब थीटा चाहे एक्स एक्सिस के साथ बनाओ चाहे थीटा वाई एक्सिस के साथ बनाओ, दोनों ही सिचुएशन में रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो आज का ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हुआ है। ओके।